Hello everyone, this is a question. Let me explain it to you. A cell is given to us, initially contains 1 molar silver ions and 1 molar copper ions. Calculate the change in the cell potential after the passage of 9.65 amperes of current for 1 hour. Okay, so we have silver. Let's write the reaction. Half of copper ions is going to give us silver ions plus half copper deposition. So n electron involved in the reaction will be 1. Silver is losing 1 electron and copper ions are gaining this. We have taken half of copper 2 plus again 1 electron change. Okay, so n is given by Z into I, current into time t, which in turn will be equal to equivalent weight divided by F, that is 96500 into I into T. We have basically substituted the value of Z. Equivalent weight divided by Faraday's constant. Okay, so now weight by equivalent weight, or rather we can say equivalent of copper ions, we would be finding first of all that would be simply equal to IT divided by 96500. Okay, so if we continue to solve it, we put the value 1 by 96500 into current is given as 9.65. The time given to us is 1 hour, so that will become 3600 in seconds. Okay, so from here we get the equivalence of copper ion equal to 0.36. Once we have this, first of all, we will see the decrease in concentration of copper ions. That would be equal to this equivalence we have calculated divided by this copper 2 plus 2 charge n value, we can say n factor basically. Okay, now the next, so this will be equal to 0.18 molar. Now we will see the remaining concentration. The initial one is given as 1 molar minus the decrease in concentration of copper ion minus 1.18. This will give us 0.82 molar. Okay, now if we talk about the tin concentration, just going above, we will be seeing, yeah. Okay, so this is given to us. Now we will see increase in the concentration. Okay, so let's write it. Increase in concentration of silver ions, that is 1 plus this remaining. We will be writing plus 0.36 molar that we just had the equivalence of copper ions. Okay, this will give us 1.36 molar. Now applying the Nernst equation, E cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 divided by N into log of concentration of silver ions divided by concentration of copper ions raised to the stoichiometric coefficient 1 by 2 from the equation that we wrote. Okay, so now we will be putting the value. We will take this E naught cell on the other side. We can just write it in this way. E naught cell minus EMF of the cell will be equal to delta E, that is equal to 0.0591 divided by N into log of concentration of silver ions. This can be written as square root of copper ions concentration, because half can be written like this. Now let's put the value. This delta E will be equal to 0.0591 divided by 1 into log of 1.36 divided by square root of 0.82. Okay, on solving this, delta E comes out to be equal to plus 0.010 volt. So going above, we can see that the answer to this question will be plus 0.010 volts. Okay, thank you. तो इस क्वेश्चन में हम लोग से कह रहा है कि द एडिशन स्टोरेज इस सेल इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, हम लोग को एडिशन का स्टोरेज सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, दो सेल रिएक्शन, दो हाफ रिएक्शन दिए गए हैं, और हम लोग से बताना है कि व्हाट इज द सेल रिएक्शन, व्हाट इज द सेल ईएमएफ, हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ केओएच एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक करके इसको तीनों ही पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो अपने को क्या दिया हुआ है, जो अपने को डिफरेंट रिएक्शंस दिए गए हैं, अपने को एनोड बताना है, कैथोड देख लीजिए। जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव वैल्यू इसकी ज़्यादा बड़ी है, प्लस 0.7 है, ठीक है, और ये हम लोग को बेसिकली क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, Fe से Fe2 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है।
तो ये हम लोग का जो रहेगा रिएक्शन, वो रेडॉक्स रिएक्शन में एनोड पे क्या रहेगा, जो अपना एनोड रहेगा, एनोड पे हाफ रिएक्शन कुछ Fe की होगी, फिर सॉलिड हम लोगों का 2OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके FeO बनाएगा, बेसिकली मतलब Fe2 पॉजिटिव बना देगा, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो कैथोड पे होगी, कैथोड पे रिएक्शन होगी, जो Ni2O3 है वो रिएक्ट करेगा H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और हम लोग को देगा क्या, NiO देगा, NiO प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है। ये हम लोगों की रेडॉक्स रिएक्शन है। अब चलिए तीनों पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में अगर मुझे ई सेल निकालना है तो ई सेल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाँ, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ base 10 molar concentration of H2O divided by molar concentration of OH negative का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.059 divided by 2 log of log base 10 molar concentration of H2O divided by molar concentration of OH negative का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज रख देना, सिंपली वैल्यूज रखने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.87 प्लस 0.40, तो ये आ जाएगा 1.27 वोल्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में है दैट ई नॉट, जो अपना ई सेल है वो इंडिपेंडेंट है किससे, OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन से, तो ये अपना सेकेंड आंसर होगा। तो जो अपना डेल्टा जी नॉट होगा यहाँ से, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस NF ई नॉट, तो उसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी आती है कितनी, वो हमारी वैल्यू आएगी 245.11 किलो जूल, ठीक है। ये हम लोग का थर्ड पार्ट का था, ये हमारा थर्ड है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टर एनर्जी इतनी हो जाएगी, तो अपना आंसर ये हो जाएंगे, ये सारे तीनों अपने आंसर हो जाएंगे। थैंक यू। तो इस क्वेश्चन में हम लोग से कहा गया है कि दैट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल NO3 नेगेटिव एक्वस प्लस 2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन हम लोग को NO2 देता है प्लस 2H2O देता है इस 0.78 वोल्ट। अब हमको बताना है कि कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल इन 8 मोलर H पॉजिटिव and what will be the reduction potential of the half cell in a neutral solution. Assume all the other species to be at unit concentration. तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो इसका पहला पार्ट है इसमें क्या बोला गया है, दैट 8 मोलर H पॉजिटिव सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, 8 मोलर H पॉजिटिव सोल्यूशन दिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल अदर स्पीशीज इज यूनिटी, ठीक है। तो अपना जो रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा ERP इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, E नॉट ऑफ RP प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 1 log बेस 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी आप वैल्यूज रख दीजिएगा, तो इसकी वैल्यूज रखने के बाद 0.78 प्लस 0.1602 सॉरी 1062 आएगा यहाँ पे 1062, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.8862 वोल्ट, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेकंड में हम लोग को बोला गया है कि सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल सोल्यूशन है, ठीक है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁻7 मोलर हो जाएगा, और बाकी सारी स्पीशीज की तो यूनिटी ही है। तो यहाँ से जब हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E नॉट ऑफ RP प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 1 log ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे H प्लस की जगह आप 10⁻⁻7 रख दीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आएगा 0.78 प्लस माइनस ऑफ 0.826, और जिसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.046 वोल्ट। तो ये अपने दोनों पार्ट्स के आंसर हो जाएंगे। थैंक यू। अपने को इस क्वेश्चन में यह बताया गया है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद H2 गैस बन रही है, Cl2 गैस बन रही है, NOH बन रहा है, और ये सब कुछ इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो और अपने को क्या बोला है इसके क्वेश्चन में, आगे क्या दिया गया है कि करंट 25 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इफिशियंसी है, करंट इफिशियंसी है 62%, और 20 लीटर NaCl के सॉल्यूशन में
जो अपने वेट का 25% है, अपने वेट का 20% है, उसमें फ्लो किया जा रहा है 20 लीटर NaCl के सॉल्यूशन में करंट फ्लो किया जा रहा है। और अपने को बोला गया है कि राइट डाउन द रिएक्शन एनोड और कैथोड, मतलब कि अपने को एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, एनोड एंड कैथोड, वह रिएक्शन लिखनी है। सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ लॉन्ग विल टेक इट टू प्रोडक्ट 1 kg Cl2, कि मतलब कितना समय लगेगा जब 1 kg Cl2 जमा हो जाएगा। और पूछा व्हाट विल द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विथ रेस्पेक्ट हाइड्रोक्साइड आयन, कि मतलब मोलरिटी क्या होगी हाइड्रोक्साइड आयन की। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन्हें के लिए क्या है, सेल रिएक्शन पूछी है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में सेल रिएक्शन पूछी है, तो एनोड पे क्या हो रहा है, Cl माइनस से क्या हो रहा है, Cl2 बन रहा है। तो यहाँ पे 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपने एनोड की सेल रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से कैथोड पे सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2O था, वो क्या बन रहा है 2OH माइनस प्लस H2 गैस बन रही है। ये अपने को बताया गया है, तो इसको सोल्व कर देंगे, +2 इलेक्ट्रॉन। ये अपनी कैथोड पे सेल रिएक्शन हो गई। ये अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में अपने को क्या पूछा है कि 1 kg क्लोरीन को जमा होने में कितना टाइम लगेगा। Cl2 कितना हो गया 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो मास इज कहता है Z करंट इंटू T, तो यहाँ पे Z कितना हो जाएगा 35.5 अपॉन 96.5 फेराडे लॉ लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। करंट 25 एम्पियर दे रखा है और उसकी इफिशियंसी है 62 और टाइम हमें फाइंड करना है और मास अपने को दिया है 10⁻³ तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो टाइम इतना आ जाएगा 1753474.83। ये आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको घंटे में लिखे तो 48.70 होर लगेंगे इतने 1 kg क्लोरीन को जमा होने में। और अपने को पूछा है कि मोलरिटी ज्ञात करो। थर्ड पार्ट में अपने को क्या बोल रहा है कि जो जमा हुआ है सॉल्यूशन उसकी मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि जो OH माइनस का इक्विवेलेंट वेट होगा OH माइनस का, वो बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 फॉर्म्ड। ये कितना आ जाएगा, इतना था और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 28.17, ये OH माइनस का इक्विवेलेंट वेट हो गया। और हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट OH का बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट OH माइनस का। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, सो मोल्स ऑफ OH माइनस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 28.7। और अपने को मोलरिटी पूछी थी, तो मोलरिटी क्या होगी, मोल में अपने को डिवाइड कर देना होता है वॉल्यूम का, तो मोल अपॉन वॉल्यूम। तो 28.17 डिवाइडेड बाय 20, यह इसकी मोलरिटी हो जाएगी, यही इसका आंसर होगा। ये हमने क्या किया है इसमें, यहाँ पे एक बार थर्ड पार्ट में दोबारा दिखा देता हूँ कि जो वेट था, इक्विवेलेंट वेट था, वो OH माइनस का और Cl2 का सेम होना था। तो Cl2 का वेट हमें पता था ये होगा, तो ये इसका मोल्स हैं, Cl2 के ये मोल्स हैं,
तो उतने मोल्स ही OH माइनस के होंगे, उतने मोल OH माइनस के कर दिए, और मोल के बाद में मोलरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम का भाग दिया जाता है, वो दे दिया, और ये अपना आंसर आ गया 1.408।